एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना? लेट अस गेट इंट्रोड्यूस टू ईच अदर. गाइस, मेरे को ना एक बार लाइव सेशन भी है ये, तो मेरी साउंड की क्वालिटी और ये सब मुझे एक बार चेक करने दीजिए बेटा, है ना? जस्ट लेट मी चेक. I will be shortly starting, but before that, I would again appreciate if all of you could come on screen. क्योंकि क्या होता है बेटा, ये जब तक कि हम लोग एक दूसरे से जेल नहीं करेंगे, चलो साउंड इज एब्सोल्युटली फाइन. चलो guys, try to understand. Hello, hello, am I there? Yes. So, हाँ, चलो. uh, let's understand now one thing. See, you are in ninth standard, right? Yes or no? So when I say 9 का टेबल, you will speak it out as a pro, है ना? अच्छा, प्रीतिशा, सोनी, फातिमा, जूही, श्रावणी, रेणुका, माही, हंशिका, आस्था, काजी, जैनब, एक बार सिर्फ एक बार सिर्फ आप लोग आओ स्क्रीन के सामने, सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास एट लिस्ट. आज आप लोग को पार्ट 1. थैंक यू प्रीतिशा. प्रीतिशा, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल. Jane Tata Parsi Girls High School. Oh, I had a privilege to meet Pocha ma'am. Fatima, you are from which school? The same? Sorry, you are not audible. Good to see you, Pritisha and Fatima. Yes, you are not audible. Please unmute yourself. Tata Parsi. Okay, Tata. Kazi, beta. No, Kazi nahi. Sorry. What's your name? Tikra Fatima Sheikh. Yes, Fatima, beta. You are from Tata Parsi, right? Yes, yes. Great. Renuka? Renuka, Soni. Thanks for coming, huh? Pritisha and Fatima and Renuka. Rest of you, you need to come once on screen, beta, before I actually start. Yes, Juhi, you are from Tata Parsi, right? Yes, I'm from Tata Parsi. Tata Parsi. Tanvi, you are also from Tata Parsi? Yes, sir. Great. Shravani, Zainab, all of you are from Tata Parsi. Is this? Yes. Sir. Hello. Thanks to your teachers that they have taken this session seriously. Anna, actually, on a very short notice, I pinged them with the Zoom link. So now I'm sharing my screen. Acha, you are all from state board. Anyone from CBSE board? No, sir. Acha. Like anyone from the group, like anyone who is claiming from CBSE board? None of you? Uh, Acha, how do you pronounce? It is Kyle, Kylie. Am I right? What is the pronunciation? Kaylee. Kylie. Right. Kylie. K-Y-L-E. Okay. Kylie. Sorry, beta. Kylie. Okay. Fair enough. So let's now, without a further ado, let me start off today's session. So just a minute, huh? Geometry master. Okay. So I'm sharing my screen. So basically, when we talk of algebra, the first that comes in mind is sets comes into picture, real numbers, polynomials, ratio proportion, linear equation, two variables, financial planning, statistics. Am I right? These are the 7 chapters. And when we talk of geometry, right from basic concept of geometry to parallel lines, triangles, construction, quadrilateral, circle, coordinate geometry, trigonometry, surface area, volumes. So we have 9 odd chapters here. And how many chapters? 7. So in totality 17. Part 1, part 2 मिला के हमारे पास total कितने chapters है? 16 chapters. How many chapters, guys? 16 chapters. So I will tell you a technique. Today is part 1 of 3. What is the meaning of part 1 of 3? Today
since this being the first class, acha, all of you are comfortable in English and Hindi both, or only English or only Hindi? All of you just speak up. Yes, sir. Acha, you are comfortable in both, right? Yes, sir. Well, so total 16 चैप्टर है. अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आप बच्चों से, which chapter bothers you much in algebra? Which is the chapter which bothers you very much? Ratio and proportion. Oh, ratio and Financial planning. sorry, financial planning. I know ये 10th standard को भी बहुत सताता है. Two variables. Financial planning. अच्छा, linear equation in two variables, ये थोड़ा अच्छा. और what about geometry? Geometry में सबसे ज्यादा क्या सताता है? Quadrilateral. Quadrilateral. Surface area volume. Trigonometry. Trigonometry. सरफेस एरिया वॉल्यूम, राइट. तो ये सारे चैप्टर्स बहुत आप लोग को तंग करते हैं ना. हमारी हम्बल रिक्वेस्ट, किसी किसी का ना बैकग्राउंड पे बहुत आवाज आ रहा है, तो वो अपने को अनम्यूट कर ले, है ना. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ नाउ. टुडे सपोज मेरे को आपको एक ग्लिम्स देना है कि सेट थ्योरी सबको आता है अच्छे से. सेट्स आता है. सेट्स. Yes, sir. Confident about sets, all of you? I I will give you a glimpse कि कोई भी चैप्टर को डील कैसे किया जाता है ना. इफ यू सी, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग अ चैप्टर, है ना. सो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं, एक अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ. पहले चैप्टर को हम लोग कितने स्मार्टली कर सकते हैं वो देखते हैं, है ना. सपोज द फर्स्ट चैप्टर, सेट्स आई नीड टू वर्क. सो सेट्स में हमारे पास एक होता है एजेंडा माइंड मैप. व्हाट माइंड मैप क्लास? एजेंडा माइंड मैप. एजेंडा माइंड मैप करता क्या है? एजेंडा माइंड, अच्छा, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन अभी जो मैंने शेयर किया? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. एजेंडा माइंड मैप करता क्या है सेट थ्योरी में, वो देखो. एजेंडा माइंड मैप बताता है कि सेट्स में क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, the first cloud says, this is the first cloud. So we study the basic definition of sets. And the second cloud says we study types of what? Representation of a set. Do you remember? Types of what? Representation of a set. And what is third thing that we study? The third thing that we study is, types of sets. Empty sets, finite sets. Do you remember? है ना. Yes. Then we study what? Operations on sets. Fourth. देखो कैसे दिमाग में ऑपरेशंस ऑन सेट्स. मैं तुमको एक ग्लिम्स दे रहा हूँ, फिर जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है चिंता मत करो, पढ़ा दूंगा. मेरे लिए चुटकियों का खेल है, because I have recorded my name in International Book of Records as the fastest mathematics teacher for CBSE and state 10th standard. And fourth is operation on sets, and this is also known as Venn diagram. Do you remember Venn diagram? And so next, number of elements in a set, that is n of a. So don't you think यही आपके कोर्स में है? ये बादल से, ये पूरे पांचों बादल से you can conclude that it is all inclusive of the syllabus of chapter 1, that is set. Agreed or not? कि और कुछ भी है? Yes or no? अरे yes or no? Any response from Sir. this? यही है कि इसके अलावा और कुछ भी है बच्चा, है ना. आई जस्ट वांटिंग टू आस्क. यही है, राइट, है ना. जस्ट अ मिनट. हाँ, SSC 9 सेट्स. यस. तो हम लोगों ने जो भी देखा सेट्स में यही सब होता है. अब मैं इसको आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना.
कि आप लोग को पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था, इसको हम लोग मुश्किल से 10 मिनट में पढ़ के दिखाएंगे। आर यू रेडी गाइस? कैसे 10 मिनट में पढ़ते हैं? देन आई विल टीच यू अदर टॉपिक्स विच एवर इज ऑन प्रायोरिटी। Yes, Zainab, Juhi, Fatima, Riti, Tanvi, all of you are getting. Please make sure draw this figure first. I want you to draw this figure first. And when it is done, write in the chat box done. यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ सबसेट्स में, उसको बोलते हैं सबसेट्स एंड सुपरसेट। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ही डन हो जाता है बताना बेटा आप लोग, है ना? लेट मी नो। Map is known as what kind of map, guys? I told you this map is known as what? All of you repeat. Put your mic on. This map is known as what? Agenda mind map. Agenda mind map is a technique wherein the memory, you know what happens to the memory, my dear students? Memory always remember anything which is put in order. That's why you forget so many things in life. Because when everything is put in order, then the memory is able to trace it properly. अगर आप रूम में अपने कपड़े, अपने स्टेशनरीज, अपने बुक्स को एकदम गिबरिश जिबरिश तरीके से इधर उधर फेंक दो, तो तुम्हारा माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। और वही अगर सिस्टमेटिक बुक्स को शेल्फ में रखो, कपड़ों को वार्डरोब में रखो, है ना, सब चीज सिस्टमेटिक रखो, तो यू आर एबल टू टेक द फाइल, टेक द रजिस्टर, टेक द कपड़ा, whatever from the proper point within no time. Am I right or wrong? Am I making sense? Yes. So, being a memory power trainer, I know कि एक बच्चे को कोई चैप्टर 10 मिनट में दिमाग में कैसे बिठाना। डोंट यू थिंक? मैं जब एजेंडा माइंड मैप बना रहा था, सिर्फ मुझे मुश्किल से, है ना, अगर मेरे एक्सप्लेनेशन को छोड़ दो, मेरे दिमाग ने इसको मुश्किल से 2 मिनट में क्रिएट कर दी। So 2 minutes you can create the entire chapter's order. So this is meant for order. Then there comes a concept mind map, that is CMM, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। और फिर आने वाला है TMM, टाइप्स ऑफ माइंड मैप, है ना? चलिए लिख लो आप। अच्छा, all the people over here know each other. Can I assume this? I repeat, once you are done, let me know. Then I will start off with my CMM, that is concept mind map. Yes, people are writing now done. Perhaps I can move on. I appreciate those students who are on screen like Tanvi and Kylie, you know, because they are seen as writing. Their sincerity is observed. So shall I now proceed? All of you please say done, right? Yes, sir. Right. So let's start. So concept mind. Yes, concept mind map. So concept mind map is what, guys? Concept mind map is a very simple topic, a very simple way of putting the entire concept at one go. सोचो 10 मिनट में एक चैप्टर दिमाग में बिठाना कितना आसान हो सकता है किसी के लिए भी। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, मैंने फिर से, अभी एकदम ध्यान से सुनना, है ना, नो इफ नो बट, है ना। सो इफ आई राइट डाउन अगेन द सेम पैटर्न हियर, सेट्स। So what is the definition of a set? Quite recently, I have heard what is the definition of a set. So definition of a set goes like this, right?
So what is the definition of a set? So this is, suppose for example, if I say, always start with example A, E, I, O, U. So what is the conclusion that can be drawn? The definition says that this is a well-defined collection, well-defined collection of what class? Objects. Am I right? It is a well-defined collection because you need, you know, A, E, I, O, U. सब अंग्रेजी के बच्चे हैं. A, E, I, O, U is what? Collection of vowels. So this is a very well-defined COL, collection of what? Objects. And sets को represent कैसे करते हैं? Capital letter A, B, C. और उसके elements को कैसे represent करते हैं? Small letter. Suppose this all elements are written as X. So this is the definition of sets. Is this understood, my dear students? Yes or no? Simple. So A part is over and out. What was B part? Anybody who remembers what was the B part? देखते किसको याद आता है? The B part was, अगर थोड़ा सा दिमाग को जोर डालो तो पता चल जाएगा what was B part. क्या बताया था मैंने B part? अभी तो देखो, इसलिए बोलते हैं दिमाग में ना फिट करना, एजेंडा माइंड मैप कितना काम आता है. चलो दिखाते हैं आपको. ये देखो B part was, this is second Types part of was types of representation. So my dear students, B part is, देखो कैसा mind read करता है, types of what? Representation. So we can represent in two ways. Number one is known as very famous listing, और कौन सा method? Roster. Am I right? Do you remember, Yes. my dear students? And another is set builder, or come on, or rule representation, rule method. So in this method, what happens? I simply take set A, and if I write 1, 2, 3, 4, 5, so such a way of representation wherein each and every element is separated by comma is known as what? Is known as what? Listing and roster method. क्या method बोला जाता है इसको? Listing और roster method. Am I right? Are you getting my point, my dear students? Yes or Yes. no? है ना? समझ में, अच्छा सबको समझ में आ रहा है ना? All of you are getting Yes, Yes, sir. sir. right, है ना? So ये हम लोग सेट्स को लिखते कैसे हैं, ये सब इसमें आपको मेंशन है. सेट्स को लिखते कैसे हैं? लिखते हैं करली ब्रैकेट में. कैसे ब्रैकेट में? करली ब्रैकेट में. अब आपको कुछ और स्टैंडर्ड नोटेशन बता देता हूं. स्टैंडर्ड नोटेशन में इसे, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? क्रुकेडी को. जल्दी बताइए. दिस इज नोन एज व्हाट? Element. नहीं, बिलोंग्स टू. फॉरगॉट, है ना? दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू. और इसको देखो, कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ क्या? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. अब देखते कौन. कैपिटल जेड का मतलब क्या होता है, या आई का मतलब क्या होता है? दिस इज नेचुरल नंबर्स, है ना? नेचुरल नंबर्स. कैपिटल जेड का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ व्हाट? इंटीजर्स. इंटीजर्स कैसा होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, -1, -2 डॉट डॉट डॉट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? कौन बताएगा? आप लोग बोले ना आता है. दिस इज सेट ऑफ ऑल एक्स. तो ए को हम लोग लेते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स. और इस सिंबल को, बैक स्लैश को क्या बोला जाता है? चलिए बताइए. बैक स्लैश को बोला जाता है क्या? सच डैट. क्या बोला जाता है? सच डैट. इसको कोलन भी. सो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? एक्स का नेचर क्या है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 किसके जैसा दिखता है? एन के जैसा दिखता है. तो एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? n. Am I right or wrong? X belongs to what? n. And at the same time, what is the limit of n? तो अनगिनत चलते रहेगा, लेकिन n कहां तक जाना है? 5. तो x is less than 6. So such a method is known as set builder method. ये पढ़ा था आप लोग ने? Yes or no? Did you study this set builder method? अरे हाँ या ना? Yes, sir. सो आपके दो पार्ट खत्म हो गए. कौन कौन से पार्ट? ए पार्ट डेफिनेशन, बी पार्ट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir.
अब सी पार्ट क्या था देखते हैं, एजेंडा। ये कौन सा, ये क्या पढ़ा रहा हूं बाय द वे, दिस इज नोन एज सीएमएम। व्हाट इज सीएमएम? द सीएमएम इज नोन एज कॉन्सेप्ट माइंड मैप। दिस इज नोन एज व्हाट, माय डियर स्टूडेंट्स, कौन स्पीक अप? दिस इज नोन एज सीएमएम, दैट इज Concept map. concept mind map, a mind map which reveals all the concept at one shot, at one shot। और हम लोग उसके बाद टीएमएम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन माइंड मैप। उसमें तो हम लोग एकदम बोलते हैं ना, चैप्टर को फोड़ ही डालेंगे, है ना। So is this done, my dear students? Shall I proceed ahead? Listing method and set builder method, is this clear? Listing method में separated by commas, और roster set builder method में it is by condition, such that set of all x such that x belongs to n, x less than 6। Just give me a green signal so that I can proceed ahead with C part। Let me find out C part किस किस को याद आ रहा है। What was C part? अच्छा, please whenever you talk, unmute yourself, because अगर unmute नहीं करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा है, although आप बोल रहे हो, है ना। तो C part is, भूल गए? माइंड इतने जल्दी भूल कैसे जा सकता है? C, Types of थर्ड, टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा, देखते कौन सी स्टूडेंट बोल सकती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स। डू यू रिमेम्बर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेट्स फ्रॉम योर knowledge of your book? Do you remember what are the types of? yes, sir. Yes, tell me. Null set, empty set, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो भी बोल रहा है बहुत बढ़िया। अब इसको हम लोग, है ना, एक मिनट माँ আমি অনলাইন ক্লাসে আছি, পরে কল করবো। हाँ, तो सुनो, है ना, तुमको थोड़ा सा बंगाली सुनने मिल गया, है ना। इश वाला, इश वाला सिस्टम है यहाँ पे। सो चलो, अब हम लोग करते हैं क्या बेटा, नेक्स्ट है, बोलो क्या? टाइप्स, थर्ड ए बी सी पार्ट, है ना। दिस वाज ए पार्ट, नाउ बी पार्ट, नाउ सी इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ क्या, सेट्स। चलो एक फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले सेट का नाम आता है फाई। फाई मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा लिटरली। फिर क्या रहेगा? सिंगलटन सेट। क्या सेट मेरे बच्चों बताओ? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है उसमें सिर्फ कोई तो भी एक एलिमेंट रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर क्या आएगा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बड़ा सिंपल है, अभी कई बार पढ़ चुके हैं, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? फिर क्या आता है बोलो क्लास? इनफिनिट सेट। Infinite set. इनफाइनाइट सेट बहुत बड़ा होता है जिसको गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सर, एन, एन को गिन ही नहीं सकते, एक दो तीन डॉट 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 चलते ही जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। और इसको बोलते हैं चार टाइप का ऑफ सेट्स, कितने? फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट्स, है ना। सो हमारे पास ये चार टाइप ऑफ सेट्स है, एम आई राइट? यही आपके सिलेबस में है। So what is number of elements in phi? N phi का मतलब no, zero. What is number of elements in singleton sets? One. What is number of element in finite set? It is countable. मतलब it is having some value. What is number of element in infinite set? In infinite set, this is infinity. We cannot count. खत्म types of sets। समझ में आ रहा है कितने आसानी से types of sets भी खत्म हो गया? Yes or no, my dear students? Is it going good or it is going very difficult? समझ में आ रहा है? Yes, sir. आदि, Yes, sir. राइट। सो yes, वन sir. शॉट हम लोग ने ए बी सी किया। मैं तो इतना बड़बड़ कर रहा हूं करके टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर ये डायग्राम को बनाओगे मैक्सिमम 10 मिनट में तुम लोग खत्म, मतलब खत्म मतलब द चैप्टर इज खत्म। तुम लोग खत्म नहीं, सॉरी बेटा, है ना, द चैप्टर इज खत्म। वैसे आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद Jasmine ma'am and Pocha ma'am, principal ma'am, and Joshi ma'am called me somehow because of my schedule. I could not turn up, but I'm sure टाटा पास ही के बच्चों को, जैसे मैं प्रोविडेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर यू हर्ड ऑफ सेंट उर्सुला, सेंट उर्सुला के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो नाउ द टर्न ऑफ टाटा पास, है ना। और ये सेशन तुम लोग के लिए सिर्फ करिकुलम के हिसाब से नहीं, मैं तुमको ना आगे जो फ्यूचर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करते हैं, मेरे काफी बच्चे हैं जो आईआईएम्स में है, आईआईटीज में है, एम्स में है,
है ना, कोई सीए बन गया है, कोई म्यूजिशियन बन गया, कोई मॉडलिंग कर रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, खिटियाली कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर ऐसा है ना। ऐसे भी बच्चे हैं मेरे, है ना। So, my dear students, A, B, C. A was definition. B was types of representation. C is rather types of sets. Now, what is the name of D? चलो बताओ. Operation on sets. Very good. The topic is, ये जिसने भी बोला excellent. Operations on set के पहले एक छोटा सा टॉपिक आता है, उसका नाम होता है सबसेट सुपरसेट. आपको पता है what is subset and what is superset, my dear students? Are you aware of? बाय द वे, मैं थोड़ा सा स्टॉप करके मैं कुछ और शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि तुम्हारा ये जो चैप्टर है, क्या नाम है, सेट्स नाम का, जब हम एक्चुअल देखते हैं, व्हेन वी सी एक्चुअली, सो वो कितना सारा कुछ उसमें होता है वो देख लेते हैं, है ना। ये सेट्स शुरू है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. सो मैंने क्या बोला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंट व्हाट, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट. देखो, लिस्टिंग रोस्टर मेथड, रूल मेथड और सेट फॉर्म पढ़ लिया. कितने कचरे जैसा लिखा है, और हम लोगों ने कितने स्पीड में कर लिया है, राइट. फिर जैसे 2 4 6 8, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. सो 2 4 6 8, व्हाट वी ऑब्जर्व, दिस इज 2, है ना, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8. सो वी 12. राइट दिस इज सेट ऑफ ऑल एक्स, एंड दिस इज 2 का टेबल, 2 1, सो एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, बट इवन नेचुरल नंबर 14 तक इट इज लेस देन 15. सो हाउ डू आई राइट इन शॉर्टकट x such that x is equal to 2 into 2 ones are 2, 2 twos are 4, that is 2 into say any term y, है ना. 2 ones are 2, 2 2 fours are 4, and y is natural number, and y is less than what, we can say y is less than 8. So ये डिफिकल्ट जाएगा, ये ज्यादा आसान है. ये एक इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन क्या है, 15 है. ए ई आई ओ यू को कैसे लिखेंगे बताओ. C is set of all x such that x is what, vowel of English alphabet. English alphabet. Are you getting my point? D. D is color of rainbow. So what is D? Vibgyor, violet, indigo, green, है ना, yellow, orange, red. Are you getting my point, my dear students? है ना. This is all x which lies between -3 and 3, and it is an integer. So what is p, my dear student? -2, -1, 0, 1, 2. है ना. सो हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं. फिर आप इस टॉपिक के बाद इन लोग क्या, इक्वल सेट्स. अच्छा, हमारा और एक टाइप है इक्वल सेट एंड वेन डायग्राम, एंड देन सबसेट, है ना. सो हम लोग इसको ऑर्डरली, अभी यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सारा हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. डिसजॉइंट सेट्स, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स. तो चलिए एक शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये सब अपना हो चुका है. यस, equal sets. Two sets are known as equal sets if A equal to what, B. If A equal to what, B. मतलब जो जैसा A दिखेगा वैसा B. For example, A is 3 2 1 2 3 and B is 1 2 3. अब तुम क्या बोलोगे, सर दोनों अलग अलग है, ऐसा दिखता है ना, अलग अलग है. बट तुमको क्या ये पता है, सेट में रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. तो 3 3 का क्या होगा, 3. 2 2 का क्या होगा बच्चों, 2. और 1 का क्या होगा, 1. एंड ऑर्डर इज इमटेरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3. सो सेट ए इज 1 2 3, सो इज सेट बी, देयरफॉर ए इक्वल टू बी. कर लो का. इज दिस अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? अरे मैंने शेयर ही नहीं किया, आई एम सो सॉरी. Oh, sorry, sorry. So I repeat, what I did is, extremely sorry. ए को मैं एक बार फिर से लेता हूं, आपको आपके सामने फिर बताता हूं क्या किया मैंने, वो देख. व्हाट आई डिड इज, ध्यान देना एकदम अच्छे से. मैंने दो सेट्स लिया, ए को लिया क्या, आई टुक ए एज, क्या लिया, 3 2 1 2 3, ये लिया. और बी को लिया 1 2 3. इट सीम्स ये दोनों अलग अलग सेट्स है, बट इट इज नॉट. रीजन बताओ. ये दोनों अलग अलग सेट दिखने में दिख रहे, बट दे आर नॉट, दे आर दी सेम. कैसे बताओ.
इन सेट्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 3 का क्या लिखा जाएगा 3, ये पता है आप लोग को। 2 का क्या लिखा जाएगा 2, और 1 का क्या लिखा जाएगा 1। सो दैट मीन्स 3 to 1 इज ऑर्डर इज इमटेरियल, इज एज गुड एज 1 2 3। इसका मतलब सेट ए की वैल्यू भी 1 2 3, बी की, therefore a इक्वल टू बी। दिस आर नोन एज इक्वल सेट। इज दिस अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वल सेट किसको बोलते हैं, समझा सभी को? यस और नो? A Yes. set, two sets are equal if their elements are equal and their numbers are also equal. Elements 1 2 3 or 1 2 3 equal, and number of element in A is 3, whereas in B is 3, है ना? So third sets, अब मैं sets के next part पे आऊंगा, उसका नाम है सबसेट। व्हाट इज सबसेट? देखते कौन बताता है। सबसेट्स करके एक टॉपिक लिखा था, याद करो, छोटा सा टॉपिक था, और मैंने सब ब्रैकेट में लिखा था, ये देखो यहाँ पे मैंने सबसेट्स करके टॉपिक लिखा था, ऐसे करके ऐसा सिंबल। सो व्हाट इज सबसेट्स? बोलो मेरे साथ। इसको कैसा पढ़ा जाता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसा पढ़ा जाता है? ए इज सबसेट ऑफ बी। और बी इज सुपरसेट ऑफ क्या पढ़ा जाता है? ए। और इसका मतलब क्या होता है कि ए बी के अंदर है, मतलब एक गोला ए का दे दो और बाहर वाला गोला किसका दे दो बेटा? बाहर वाला जो सर्कल है, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे, किसका दे दो? बी। तो कौन बड़ा हुआ? ए किसका सबसेट हुआ? ए किसके अंदर हुआ? बी के अंदर। और बी उसका, उसका बोलते हैं ना, बी उसका फादर हुआ, उससे बड़ा हुआ, तो बी को क्या बोला जाएगा? दिस इज नोन एज सुपरसेट। तो अब समझा व्हाट इज सबसेट? which is inside something set, some set A B, and what is superset? जो ऊपर रहता है ना? समझा? सबसेट अंदर रहता है, सुपरसेट कहाँ रहता है बच्चा? बोलो क्लास, कहाँ रहता है? सुपरसेट कहाँ रहता है? ऊपर रहता है ना, बड़ा होता है, और सबसेट अंदर होता है। अब आएंगे हम लोग वेन डायग्राम पे, है ना? सो आई एम मूविंग टू वेन डायग्राम। सो व्हाट Sir, इज वेन excuse डायग्राम? me. यस यस Excuse me. यस Sir, my मैम। maths teacher's suggestion is this chapter is already over, and it ओके would be better if you can take something related to linear equations or something. Okay, actually, my point was I just wanted to. Acha, this chapter is not coming in their syllabus, kya? No, no, no. Oh, sorry, And this ma'am. has nothing to do with class 10th actually, na? So if you can Okay, take linear equations or something which will be relevant for them for class 10th okay, also, it will be better. absolutely fine, ma'am. Actually, what I will be doing, I will be immediately switching over to chapter called linear equation in two variables. Absolutely right. है ना? All right. Thank you. So Thank you. thank you, man. Thank you. So guys, let's understand this chapter called linear equation in two variables. So firstly, you should know one thing. When I talk of linear equation in two variables, I would rather show you what is the chapter number. Yes, any one of you? Linear equation in two variables. Fifth chapter. Sorry, Fifth chapter. fifth chapter. Right. Just a minute. Let me bring it into picture. I will do the same process, but with respect to linear equation. है ना? Just a minute. Let me bring it into picture. Yes. So, are you able to see my screen, all of you? Linear equation in two variables. Yes, sir. So, when we talk of linear equation in two variables, है ना? मुझे एक बात बताइए, linear equation two variables में थोड़ा सा अभी मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने एजेंडा माइंड मैप बनाया, क्या क्या चीज होता है linear equation in two variables में? Any one of you who can tell me? What are the things which are covered in linear equation in two variables? Methods. Methods. What are the methods, beta? Substitution method, elimination method, word problems based on it. Substitution method, elimination method. So basically, when we talk of linear equations in two variables, we have a very simple agenda mind map. All of you now get ready with your pen and pencil. So we talk of linear equation in two variables, that is x and y. So what is the agenda mind map? Agenda mind map goes like this, my dear students. The first thing is we represent linear equation in two variables. So first is definition of linear equation in two variables.
and the second cloud is, what is the second cloud? Second cloud is solution of linear equation. Yes, class, what is that? Solution of linear equations. So as rightly said by someone, the first method is what method, beta? Speak up. Kya method? Elimination. Which method is this? Elimination method. Another method is what? Substitution method. First is elimination method, second is substitution method, and third is not method, it is a way of solving word problem. So this is the words problem. So ये है हमारा linear equation two variables. What are the two parts that we are going to deal with? One is definition, basic definitions and the terminologies. Another is elimination, substitution and relevant words problems. So are you ready guys for this? Yes, sir. So now I'm sharing my other screen so that you. अच्छा, आपने ये जो मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के बारे में अभी बताया, इसको अगर आप लोग इससे देखोगे, आपके क्या बोलते हैं, बुक से देखोगे, है ना? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लेट मी ब्रिंग इट इनटू पिक्चर. जस्ट अ मिनट. फिफ्थ चैप्टर यू सेड. यस, तुम देख सकते हो, थोड़ा सा मुझे दिख गया करके. वी हैव वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, है ना, जिसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं. और ये आपका एलिमिनेशन मेथड भी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है ना. सो व्हाट आर दीज थिंग्स? इंट्रोडक्शन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग सिमिलर वर्ड प्रॉब्लम्स. तो हमारा एग्जैक्टली जो मैंने डायग्राम बनाया उसको सफाइस कर रहा है. मतलब हमने जो बोला, मतलब हम लोग ने जो ऐसा ये देखा, ये तीनों चीज उसमें आ गया. So can we start with the this is agenda mind map. इसको ड्रॉ कर लो सब आप. एजेंडा माइंड मैप के बाद मैं किस पे आने वाला हूँ? क्या कॉन्सेप्ट था? एजेंडा माइंड मैप के बाद हम लोग किस पे आएंगे? CMM. What is CMM? What is CMM? Concept mind map. What is CMM, my dear students? Concept mind map. So agenda mind map के बाद अभी मैं concept mind map पे जा रहा हूँ. So let's start. So here we go, है ना. सबसे पहले व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? थोड़ा ध्यान से सुनना. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? इफ आई से 2x, if I say 2x equal to y, then what you find here, the degree power is 1, power is 1. So anything which has degree 1, polynomial से पढ़े हैं आप लोग ने, is known as what? Linear equation. It is known as linear. Anything which is linear is degree 1. So why it is known as linear? For example, if I say x plus y equal to 5 and I say x minus 2y equal to say 7, say 7, right? So try to understand. If I plot this in a graph, then we get a line like this, where this is what we say is 5 comma 0, right? This is 5 comma 0 on x-axis and this is 0 comma 5. Since this line represent a line, therefore this is known as linear equation, LE, and these are in two variables, therefore this is known as linear equation in two variables. And whenever two linear equations comes into picture, they come together, therefore they are known as what? Simultaneous linear equations in two variables. Are you getting my point? This is part A Yes, over sir. out. अब सबको समझा linear equation part A क्या था? Why this is known as linear equation? So this is linear equation part A. Part B का नाम क्या था? बताओ. What is the name of part B? Come on. Methods of solution or solving linear equation in two variables. So what is the method? Come on, tell me. Let's start. What is the first method? The first method is Elimination. elimination. And the second method is maybe आगे पीछे substitution. And third is rather not a method. I should put it in a different box.
वर्ड्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना, वर्ड्स प्रॉब्लम। चलो इसको ना वन शॉट में देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों, एकदम सिंपल रखे इसको। एलिमिनेशन मेथड में इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन दोनों को 1 और 2 देते हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग एलिमिनेशन में, एक सिंपल रूल है, प्रोटोकॉल है, जिसको फिक्स करते हैं। इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को या वाई को हम लोग क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। सो आप मुझे देखो इधर, यहाँ पे सेम बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज x ऑलरेडी सेम है। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस 2y इक्वल टू 7। सो किसका सेम है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, इन दोनों का सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों का सेम रहेगा तो हम लोग एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब व्हाट वी राइट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। सो व्हेनेवर वी पुट माइनस साइन, सो यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा होता है। तो x और माइनस एक्स कट गया, और प्लस 2 प्लस 1y प्लस 2y इज 3y, और 5 में से 7 गया तो कितना बचा, बड़े की तरफ माइनस साइन है, बड़े की तरफ माइनस साइन है। सो दिस इज नथिंग बट -2। therefore y equal to -2/3. Is this understood, my dear students? What I did is, what I did is, I simply I simply subtracted equation 1 from 2, and I changed the sign. What I did, I changed the sign. ये minus, plus minus का plus और plus का minus, then -2/3 is the answer. Is this okay, guys? Yes or no? Understood? All of you So will unmute you yourself. please repeat elimination method? Okay. See, एक बार फिर से देखो, है ना? I am repeating this. एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले ये देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x और y को क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। तो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 7, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ये दोनों का क्या सेम है, कोएफिशिएंट 1 1 सेम है ऑलरेडी। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे बच्चा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, ये देखो माइनस कर रहे हैं, तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस, यहाँ पे 7 के आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, एक्स एक्स कैंसिल। Now you consider this +2 plus 1y is nothing but 3y. 5 में से 7 गया, -2, तो y equal to what class? Y equal to nothing but -2/3. So -2/3 is the answer. Agreed or not? Yes, sir. अब x कैसा निकले, अब y कैसा निकलेगा वो भी देखो, प्लीज ध्यान देना। अब इसी का ही दूसरा तरीका। अब देखो इक्वेशन 1 में यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और x माइनस 2y इक्वल टू 7 है। क्यों ना मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, और इक्वेशन 2 को कुछ ना करूं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 2 ये इधर जाके कोएफिशिएंट को सेम बना देगा। सो बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या, 2x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट, 5 2 जा 10। ये 2 2 सबको मल्टीप्लाई होगा, इसको भी इसको भी, और इसके नीचे इसको रख दो, x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब तुम लोग इन दोनों के बीच में क्या करोगे बच्चों, इन दोनों के बीच में फिर से ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या करोगे, इस बार प्लस करोगे। क्यों प्लस, ताकि ये दोनों कट जाए, प्लस में नो साइन चेंज। तो 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 3x, and 10 plus this is nothing but how much class, this is nothing but 17. Am I right? So the x comes out to be 17/3. So this method is known as what method? Elimination method, जिसमें जिसमें हमने देखा पहले x का कोएफिशिएंट सेम किया, फिर बाद में किसका कोएफिशिएंट सेम किया क्लास, y का कोएफिशिएंट सेम किया। तो एक बार हमको क्या मिला, इससे एक बार हमको y मिला, और दूसरे बार हमको क्या मिला, दूसरे बार हमको क्या मिला बच्चों, x मिला। Is this clear? What is the process? Coefficient of x or y should be same. Clear है? All of you write down in the chat box Yes, if sir. if you have any query, then you can ask me. मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इजी मेथड सब्स्टिट्यूशन ही होता है,
बट फ्रैक्शन आने से प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, हमको कैसे पता हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसका क्रॉस चेक बताता हूँ। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 5। तो देखते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 में x की वैल्यू डालो। x की वैल्यू कितना है, 17/3। और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 70, y की वैल्यू कितनी है, -2/3। तो टोटलिटी में कितना आया, दिस इज नथिंग बट 15/3 इक्वल टू क्या आया, 5। हेंस 5 इक्वल टू व्हाट, 5। इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। इससे आपके कोई भी टीचर, कोई भी इवेल्युएटर आपका मार्क्स नहीं काट सकता, बिकॉज तुमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि मेरा 17/3 और -2/3 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आज ना ये चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, फिर ये चैप्टर पढ़ने के बाद, है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शुरू में एक्चुअली मेरे को ये पता नहीं था कि वो चैप्टर तुम लोग का, एक्चुअली मैं सीबीएसई का ज्यादातर पढ़ाता हूँ ना, तो सीबीएसई में ना फुल सिलेबस आता है ना। तो फुल सिलेबस वाली आदत, आई थिंक तुमको ये भी पता होगा कि तुम्हारे 10th में फुल सिलेबस ही आएगा। अभी शायद स्कूल के हिसाब से फुल सिलेबस नहीं है ना। हाउ टू चेक और आंसर इज गुड क्वेश्चन। सी व्हाट आई डिड इज, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये था ना, याद करो। सो मैंने चुपचाप से क्या किया, x के जगह 17/3 लिखा, दिस वैल्यू, एंड y की जगह -2/3 लिखा, ये वाली वैल्यू, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। 17 - 2 इज 15/3, दैट इज 5। हेंस 5 इक्वल टू 5। हेंस आवर आंसर इज 100% करेक्ट। एम आई मेकिंग सेंस? ओके, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड। एक और 5 मिनट दे दो, फिर हम लोग क्लास को बंद कर देंगे, क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है, मुझे पता चला। मैं राइट बेटा, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखा देता हूं, देन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर डन, ऑलमोस्ट चैप्टर विल बी ओवर। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? इसको एकदम इजीली कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो आपको नहीं लगता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक की वैल्यू एक से निकालो, दूसरे में डालो? तो डोंट यू थिंक इक्वेशन नंबर 2 से x क्या निकल जाएगा बच्चा, 7 + 2y। ट्रांसपोज कर दो, मतलब ये 2y इकड़े से तिकड़े गया, और आप ये x को कहां डालोगे, पुट दिस x इन इक्वेशन नंबर व्हाट, 1। निकाला कहां से, 2 से, ये निकला कहां से, 2 से, और डल कहां पे रहा, 1 पे। सो बताओ क्या हो जाएगा, जहां x वहां पे ये वैल्यू चले जाएगा। तो दिस इज 7 + 2y + y इक्वल टू 5, एंड देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स 7 + 3y इक्वल टू 5। एम आई राइट? सो देयरफॉर व्हाट इज 7 minus 5 equal to -3y, and therefore answer is 2 equal to -3y, and therefore y is -2/3, which is correct. Am I right or wrong? What I did is, एक चीज से वैल्यू निकाला, किससे, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकाला, किसकी, x की, और उसको किस में डाल दिया, 1 में। 1 में डालने के बाद मेरा क्या निकल गया, y निकल गया। सिमिलरली y की वैल्यू किस में डालूंगा, अगेन इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो अपना x निकल जाएगा, बिकॉज x -2/3 इक्वल टू 5। सॉल्व दिस, therefore x you will get 5 + 2/3, 3 5s are 15 + 2, that is 17/3. Therefore x is 17/3 here, and therefore we got both the answer to be correct. You can cross verify. देखो 17/3 इधर भी आया, 17/3 इधर भी आया, -2/3 इधर भी आया, -2/3 इधर भी आया। Is this okay, guys? Is this okay? Linear equation, two variables. Done. Word problems के लिए I'm extremely sorry, because since you have got the examination tomorrow, है ना? So what is the name of the examination tomorrow? Which subject, beta? Geography. Geography. Oh, so wishing you all the best for your exam. आज थोड़ा सा मेरे तरफ से मिस्टेक हुआ और मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। नेक्स्ट इसमें जो भी चैप्टर आप बोलोगे, एडवांस में इन्फॉर्म करना मुझे, है ना?
via ma'am, है ना, because I don't take the number of the students. I always deal with the coordinators. So please, my humble request to ma'am, please make sure कि मुझे list of chapters मिल जाए ताकि मैं accordingly session plan कर पाऊँ. Is this okay, guys? चलो, thank Yes, you. sir, we'll do that. Thank you very Okay, much. thank you. God bless Thank you. you, All the sir. best. Thank you so much. And thank you to all students. Thanks to ma'am. Thank you, beta. God bless.